स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में बीजापुर के 530 साल का जश्न। इतिहास के पन्नों पर आदिल शाही हुकूमत के नायाब शाहकार बीजापुर की प्राचीन इमारतें, यहाँ की संस्कृति सभ्यता पूरी दुनिया में एक अनोखी पहचान रखती है। 530 साल पहले बीजापुर शहर को बसाया गया था, जो आज तक अपनी शान और शौकत के साथ बरकरार है। तारीख की इस अजीम विरासत को बचाने, नई नस्लों तक इसको पहुँचाने के उद्देश्य से आज आलमगीर हॉल में एक दिन का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रखा गया, जिसमें इतिहासकार स्कॉलर्स ने इतिहास के इस बड़े धरोहर को बचाने और जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम के जरिए इसका संदेश दिया गया। डेक्कन स्टडीज एंड हिस्टोरिकल रिसर्च एसोसिएशन बीजापुर और इतिहासकार अब्दुल अजीज राजपूत के नेतृत्व में आयोजन इस मंच पर सूफी ऑफ दक्कन की किताब का भी उद्घाटन हुआ, जिसमें ख्वाजा अमीन दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद रफ़ी टपाल, डॉक्टर जीलानी ओटी, जमीर अहमद बागलकोट, मुश्ताक मुशरिफ के अलावा हिस्टोरियन मौजूद थे। Just like our Mr. Kapal sir also, since from long back they are asking, and he was first come front and asking that, sir, whatever the things are there, if government are not ready to protect us, one more, it is will be very important for us. So I also salute him who are come from different universities of India, the lesser known monuments, and give the knowledge regarding the monument for the students. If you are taking just like a adoption, collaborating with us, and we are given all the papers. Today we are providing who are already presented their papers, send their paper. They will get in form of a CD. And later, today who are going to register and they are interested to want to submit their papers, within 2 or 3 days they should be able to send their papers. Buddhism brought by Buddha, Jainism brought by Jain, Mahavir Jain. Then Christianity by Isa Islam, Sikhism by Guru Nanak, and Basava Dharma by Anda Basavanna, and Buddhism. So all these religions are here, all the people are here. So it is our mandatory duty to preserve all this cultural, economical, social activity, all the people here. So many, this is the world famous monument here. Nobody, no country will get such monument, especially our city has this. It shows the historical all the this cultural aspect, economic aspect, social aspect of the countries. As you know, Bijapur city is a city of all the religions. John in Persian means dear. So I'm really glad to be here for third time. I hope to cover those monuments never seen before. I'm thinking about Bijapur. It must be in the list of World Heritage Sites, not just one monument like Gur Gumbaz or I don't know, Ibrahim Roza. I think the whole city of Bijapur World Heritage Sites like Ahmedabad in Gujarat or Yazd in my country. The whole city is in the World Heritage Site list. Because if you look at Bijapur, you can see so many historical monuments that you cannot cover in 1 week. I think you need, at least you must be here for 10 days to cover all of historical monuments here in Bijapur. So I think it's very strange for me why it is not in the World Heritage Site list. Cool city of, Bijapur. I think Golconda can be in the list of World Heritage Site. And also Golconda, am I right? Golconda Fort in Hyderabad. So, and here my points present at the table, you can see and have a Google. So, Ibrahim Adil Shah and Muhammad Adil Shah of Bijapur issues the coin
very interesting coins. Ornamental figures are there in these coins. So one more interesting point of Adil Shah is in India, all the dynasties which is ruled by India, is interesting coin issued by Adil Shah is Laren. So I have with me, you can see that a shape like a hairpin, a coin which is like hairpin or a fish hook. First issued in Iran, Safavid dynasty. The king name is, ruler name is Shah Tabash in 1550. He used to introduce this coin, and that coin has famous in the world as a Sikh coin. जिस मकसद के लिए जमा किया गया सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं। मैं सारे अहबाब हमारे जितने भी अभी तक जिन लोगों ने तकरीर की, सारे लोगों ने इंग्लिश में तकरीर की, मैं उर्दू में तकरीर करना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि उर्दू बीजापुर में पैदा हुई है। उर्दू बहुत ही बीजापुर, तो उर्दू बीजापुर की ज़बान है, बीजापुर में पैदा हुई है। मैं चाहता हूँ, और मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड है, शाह ब्रह्मद्दीन जानी, ख्वाजा अमीनुद्दीन आला, ये उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं। और मीराजी शमसुल शाह जो हमारे दादा हैं, वो उर्दू के यहाँ के बानी हैं, बानी में उनका शुमार किया जाता है। तो बीजापुर की जो तारीख है कि बीजापुर न सिर्फ बादशाहों की वजह से मशहूर है, बल्कि बीजापुर की शहरत दुनिया भर में गोल गुंबद, इब्राहिम रोज़ा, 12 कमान, ऐसी ऐसी इमारतों की वजह से नहीं है, बल्कि है इन चीज़ों से भी है, बल्कि इसमें बड़ा हिस्सा बीजापुर को आम करने का जो बड़ा हिस्सा है, सूफिया किराम का बड़ा दखल है। आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी दक्कन के इलाके में आप घूमें फिरें, दक्कन के हर इलाके में कहीं ना कहीं रिलेटेड बुजुर्ग बीजापुर से मिलेंगे। सूफी बुजुर्ग कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे जिनका ताल्लुक बीजापुर से है, या तो वो बीजापुर से होकर गुजरे हैं, या तो उनका ताल्लुक खानदानी ताल्लुक बीजापुर से है, या तो बीजापुर के किसी बुजुर्ग से मुरीद व खलीफा है। आमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद व सलाम हो सरकार दो आलम पर और उनके अहले बैत अतहर पर। आज डेक्कन स्टडीज़ के रिसर्च एसोसिएशन बीजापुर के सदर और इस फंक्शन के सदर और तमाम मोहतरम हजरात और मेरी माँ बहनें, आप सबको सलाम। हिंदुस्तान की तारीख में दो पहलू हैं। हिंदुस्तान की तारीख के इस्लाम से पहले हिंदुस्तान की तारीख और इस्लाम के बाद हिंदुस्तान में आने से पहले जो हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया, अल्लाह के उन मुक़द्दस बंदों की वजह से जिन्होंने हिंदुस्तान में जो इस्लाम की बुनियादें रखी, उनमें अहम मकसद था कि हिंदुस्तान में एक तहज़ीब का माहौल बने, तमद्दुन बढ़े, हिंदुस्तान में खुदा के बारे में समझने की उन्हें सलाहियत और ज़्यादा बढ़े, और अल्लाह के पैगाम को इन अल्लाह वालों ने हिंदुस्तान की ज़मीन के हर कोने पर उन्होंने पहुँचाया। उसके बाद जहाँ तक बीजापुर के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, आज हम इस पर हमें पता है इनके दादा ने तो इनके लिए बनाया था, लेकिन आदिल शाह ने तमाम रहने वाले अवाम के लिए है। आज इस गौर फिक्र के लम्हे के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे माजी में हमारे मुकामात हिंदुस्तान को 8 वर्ष में उन्होंने जो तहजीब की, आज वो तहजीब कहाँ है, इन सवालात of today's event, and the caption is about upcoming book by Mr. Abdul Aziz Rajput, which is entitled as Sufis of Deccan and Their Shariats.
the dignitaries on the dais, keynote address, a gentleman from Iran, Hamid Reza Sururi, chief guest, Hazrat Sayyid Shah Sadi Hussaini Chishti and his son. जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ बड़ी गौर से आप भी सुन रहे हैं, मैं भी उसी तरह सुन रहा हूँ। बहुत अच्छी बातचीत हुई। आदिल शाही डायनेस्टी एक हुकूमत, ऐसी हुकूमत दुनिया के हिस्ट्री में इसका जिक्र आता है। तकरीबन 200 साल ये लोगों ने हिंदुस्तान के एक ऐसे एक हिस्से पर हुकूमत की, बीजापुर। आपको आज बीजापुर छोटा लगता है, लेकिन ये बीजापुर शुरू होता था उस दौर में गोवा से लेके वेस्ट बंगाल तक। वेस्ट बंगाल का जो ये बे ऑफ बंगाल है वहाँ तक, उस कॉर्नर तक, उधर का जो बे ऑफ बंगाल है लगता था इतना बड़ा था। जब ये लोग रूल करते थे तो बेंगलुरु, मैसूर, ये सब हमारे तंजावुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब बीजापुर का पार्ट होता था। इनके अलावा कोई हुकूमत हिंदुस्तान में चलती थी तो मुग़लों की चलती थी। खैर मुग़लों की हिस्ट्री तो पूरी दुनिया में मशहूर है, आप और हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कोताही अगर हुई है तो बीजापुर की हिस्ट्री के बारे में हुई। इसी फिक्र से बीजापुर की हिस्ट्री हो या बीजापुर में जो इमारत है, एंशिएंट मोनूमेंट्स हैं, इसके साथ भी कहीं ना कहीं एक कोताही हो गई, निगलेक्ट हो गया और कई इमारतें गिर भी गई, डिस्ट्रक्शन भी हो गया। इस फिक्र में अजीज़ रजपूत अपनी एक एसोसिएशन से आज बीजापुर के 530 साल कंप्लीट होने के एवज में आज हम लोग जो है वन डे इंटरनेशनल सेमिनार सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ इंडिया के ऊपर एक सेमिनार मुनक़द किया। आज काफ़ी दूर दूर गांव से स्कॉलर्स, इंडिया के अलग अलग शहरों से स्कॉलर्स आए और अपने पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे। और इसी के सेमिनार के दौरान एक सूफीज़ ऑफ डेक्कन बोल के किताब है, जो बीजापुर और गुलबर्गा, बीदर की सूफीज़ पर किताब लिखी जा रही है। उसका ब्रोचर भी हम लोग आज रिलीज़ किए। तो बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े डिग्निटरीज़ आज यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें इस सेमिनार में बीजापुर के जितने भी हिस्ट्री और मोनूमेंट्स जो भी हैं उसको महफूज करना, तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। अवेयरनेस और हेरिटेज अवेयरनेस करने की इस पर हमारी कोशिश है। तो हम हर मोनूमेंट्स को, गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि मोनूमेंट्स के लिए गौर फिक्र करें और इसमें हम जैसे लोगों का ताउन करें और हर मोनूमेंट को बचाने की कोशिश करें। और जितने भी मोनूमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो पूरे हिस्ट्री के हमारे रिलेटेड हैं, तारीख जाहिर करते हैं। आज उनकी हालत ऐसी पूरी नेग्लिजेंसी है, तो वो नेग्लिजेंसी को दूर किया जाए और हर मोनूमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश और गौर फिक्र। आज हमारा सेमिनार करने का यही मकसद है कि अवेयरनेस आए और हेरिटेज को बचाया जाए। और जो लोग अपने रिसर्च किए हैं उन्हें अपने अपने पेपर्स यहाँ पर प्रेजेंट करे हैं। उसमें बहुत अच्छे पेपर्स हमारे पास आए हैं, तकरीबन 70 पेपर्स आए हैं हमारे पास, जो इंडियन हिस्ट्री को रिलेटेड है और स्पेशली बीजापुर आदिल शाही के लिए। क्योंकि आदिल शाही के 200 साल हुकूमत में उन्होंने जितने यहाँ पर ताउन किए हैं उसका कितना भी हम लोग शुक्रगुजार करेंगे तो बहुत कम है। तो हर मोनूमेंट को हमको ये करने के लिए, बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोशिश है। तो हम सभी से दरख्वास्त करते हैं कि मोनूमेंट को बचाया जाए और उसको रिस्टोर करने की फिक्र की जाए। सुहाने सफर का अब लीजिए आनंद। आपके लिए रोजाना बीजापुर से पुनः आरामदायक सुविधा के साथ रात 10 बजे बीजापुर केंद्र बस स्टैंड दात्री मस्जिद के सामने एसी स्लीपर साई कृपा ट्रैवल्स जो आपकी सेवा के लिए अब है तैयार। यात्रीगण इसकी बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए गणेश ट्रैवल्स ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।